Yes. So whenever we talk about current affairs, one of the most important component in prelims is science and technology. Science and technology is one such areas from where UPSC is asking multiple questions. Few years in between, हर 2-3 साल में वो क्या करता है, कुछ जनरल साइंस के क्वेश्चन पूछ लेता है, जिसमें वायरस, बैक्टीरिया, ये सब है ना, हमारी ज़िंदगी वैसे भी ख़राब करते हैं, पेपर भी ख़राब करते हैं दोनों चीज़ साथ में चलती है इस वाले पेपर में. बट एनी वे, whenever it comes to science and technology, this is an area which can be done relatively well and accuracy can be very high. ठीक है, बट टाइम टू टाइम अब आपको एरिया समझने पड़ेंगे. लेट अस जस्ट स्टार्ट इट वेरी क्विकली. आई होप ऑल ऑफ यू आर अवेयर. सबसे पहले एक बार ईयरली एनालिसिस देख लो. 15 से लेके 23, 1-2 साल एक्स्ट्रा हुए, बट इन जनरल रफली अगर हम पिक करें तो अराउंड 10 क्वेश्चंस का हम लेके चलते हैं. 10 क्वेश्चंस लगभग अपने साइंस एंड टेक से आते हैं. ठीक है, दिस हैज बीन द एनालिसिस. नाउ व्हेन वी सी फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ, this is the area which is more important than overall questions. Can you see the areas from where UPSC is asking questions? Number one, it is biotechnology. Biotechnology is very, very important. Look, we have gone through an era of pandemic. Okay, the new variant is again coming in news. Yesterday the first case came in Delhi also. So this is what it is going to be very, very important. And that's why even UPSC is asking a lot of questions from biotech. तो बायोटेक को देखो अच्छे से हमने प्रिपेयर करना है. इसके बहुत बेसिक फंडामेंटल्स हैं. आप लोगों को भी हल्का सा एनसीईआरटी रीड करना पड़ेगा. लाइक इन बायोटेक, आई वुड आस्क ऑल ऑफ यू क्लास 12th एनसीईआरटी. In that there is a specific section of biotechnology. So please read it before the classes when they will start. I want you to also little bit prepare little bit for it. So biotech is very, very important. Second, India is, I would say, in last few years has been able to get a lot of achievements in space sector. Okay, we are also becoming a prominent personality in the defense technology. You'll be amazed to know, like in last few years, we also now have some buyers. And we are considered as the top 3 players who are importers of defense technology. But now we are also becoming a good player in the defense arena. And in the future, we are going to become even more powerful. Third area which has always remained important for this exam is ICT. But from last 2-3 years this is fluctuating. किसी साल एकदम से 4 क्वेश्चन आता है, एकदम से 0 कर देते हैं. But this is an area which remains very, very important because the large set of technology that we talk about, ठीक है, जितना भी हम IT का बात करें, हम AI का बात करें, क्वांटम, कुछ जितनी भी इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजीज हैं, सारी कहाँ पे आती हैं? ICT के अंदर आती है. तो ये एक एरिया है जिसको आपने अच्छे से प्रिपेयर करना पड़ेगा. जनरल साइंस, प्लीज एनसीईआरटी ऑफ क्लास 9th and 10th, at least the bio portion, it should be very clear to all of you. It has all the basic fundamentals, okay, which are required to learn. Even the basics of biotechnology, जो initial basics है, वो कहाँ से start होता है? जनरल साइंस से स्टार्ट हो जाता है. तो ऑल ऑफ यू शुड मेक योर लेवल बेस्ट कि एटलीस्ट 9th-10th की एनसीईआरटी हम इसमें कर लें. फाइनली कम्स द टर्म्स इन न्यूज़. यूपीएससी इज आस्किंग सम टर्म्स जो हेयर एंड देयर आ जाता है न्यूज़ में, और उसको हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा फोकस करेंगे करंट अफेयर्स के पार्ट ऑफ व्यू से. बट हमें इस वाले सब्जेक्ट में सिर्फ करंट अफेयर करके काम नहीं मिलने वाला. हमें टेक्नोलॉजी समझनी पड़ेगी. इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Because what will happen that, like suppose if we take a specific aspect of biotechnology, we'll teach you that, पढ़ा देंगे जो जो करंट में होगा वो भी पढ़ा देंगे. बट जब तक आपको बेसिक्स नहीं समझ में आएगा कि अच्छा बायोटेक होता क्या है एट द बेसिक लेवल, तो दिक्कत हमेशा बनी रहेगी. सो इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी व्हाट वी आर प्लानिंग, वी आर गोइंग टू प्लान दैट विल हैव बेसिक्स प्लस करंट अफेयर्स क्लासेस. जस्ट लाइक इन एनवायरमेंट, वी आर ऑल्सो गोइंग टू हैव द सेम सेट ऑफ थिंग इन द साइंस एंड टेक, ताकि आपकी डाउट्स भी क्लियर कर पाएँ. कोई भी अगर टेक्नोलॉजी है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यूपीएससी पूछता है उसकी एप्लीकेशन पे. सबसे ज़्यादा क्वेश्चन उसी पे होता है. वो 4 पॉइंट दे देगा कि इट कैन बी यूज फॉर दिस 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 दिस. सो एप्लीकेशन इज समथिंग वन एरिया वेयर वी हैव टू पुट अ लॉट ऑफ एम्फेसिस. उसके बिना तो काम नहीं चलता प्रीलिम्स में. इनफैक्ट सेम चीज़ मेंस में भी होती है. अगर आप मेंस में देखोगे, यहाँ पे उसने स्पेस टेक पे सिर्फ पूछ लिया, 1-2 चीज़ें पूछ ली चंद्रयान पे. वहाँ पे वो पूछता है कि हाउ दिस इज गोइंग टू हेल्प इन द नेशंस डेवलपमेंट.
So that is why application part remains the most important part, because none of you and me are going to become scientists by reading this. ये पढ़ने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है ना, ऐसा कुछ करने के लिए। इंडिया में वैसे भी जनरल साइंस का इफ यू सी, है ना, नोबडी रिस्पेक्ट दोज पीपल हु टेक दिस सब्जेक्ट्स। तब इनको इंजीनियर बनना है, इन्फोसिस जाना है। एनीवे, सो मेजर थीम्स आर ओनली दिस मच। कुछ इधर उधर का एक आधा चीज़ें आ जाती हैं, वो इग्नोर भी कर देंगे तो फ़र्क नहीं पड़ेगा। लार्जली देखो पिछले 3 साल का ऐसा पैटर्न रहा है, ठीक है, 3 2 2 तो लगभग 8 से 9 क्वेश्चन आपके रहने ही वाले हैं यहाँ से। एंड वी हैव टू मेक श्योर कि हम इस पैटर्न के हिसाब से पढ़ें, इस पैटर्न के हिसाब से नहीं, बिकॉज ये तो कभी भी 0 हो जाएगा, कभी भी 5 हो जाएगा, इसका हम कुछ नहीं कर सकते। उन्होंने पूरा पेपर को अनबैलेंस ही इस तरीके से कर रखा। लाइक आई स्टिल रिमेंबर 2020 पेपर। 2020 पेपर वाज अ गेम चेंजर। उन्होंने क्या किया, सारी चीज़ें हटा के सिर्फ जनरल साइंस डाल दी। जैसे आपका सीसेट में होता है, सब छोड़ छाड़ के बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग द एग्जाम, है ना, 15 क्वेश्चन एक नहीं आया कोई बात नहीं, दोबारा प्रोबेबिलिटी ट्राई करो, तीसरी बार ट्राई करो। यहाँ पे यही चीज़ है कि अगर आते हैं तो सीधा 5 क्वेश्चन आते हैं, 1-2 में इनको फील ही नहीं आती कुछ। तो हमें इन एरियाज पे फोकस करना है, बिकॉज ये जो प्रिडिक्शन है, देखो ये आपके और मेरे हाथ में नहीं है। जो वहाँ पे पेपर सेट कर रहे हैं प्रोबेबली उनके दिमाग में कुछ चल रहा होता है। और ऐसा नहीं होता कि जिसको बायोटेक आती हो बहुत बड़ा अच्छा सिविल सर्वेंट बनेगा, ऐसा भी कुछ नहीं है, नहीं तो फिर सब डॉक्टर्स को ले लेते हैं हम। बट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू प्लीज़ मेक श्योर इन टेक्नोलॉजीज़ को समझना जरूरी है। अगर आप थोड़ा सा टाइम इसमें इन्वेस्ट करके बेसिक से यूट्यूब पे भी कुछ थोड़ा बहुत वीडियो देखना चाहें, इट विल नॉट बी अ वेस्ट ऑफ टाइम, टेलिंग यू फ्रेंकली, ठीक है। क्लास में तो आपको सिखाया जाएगा, बट अगर आपको कोई टेक्नोलॉजी मान लो न्यूज़ में आ रही है, आपको लगता है इसको सीखना है, एक सबसे अच्छा तरीका इसका ये है, मेक ए लिस्ट। वट एवर यू सी इन द न्यूज़ उसकी एक लिस्ट बना के रख लो, ताकि लास्ट तक आपको कम से कम क्लैरिटी होनी चाहिए उसके ऊपर। ऐसे मान लो कोई आईसीटी का टूल है, ठीक है, तो हमें पता होना चाहिए कि हाँ फास्टैग की रेंज कितनी होती है। पिछली बार उसने पूछ लिया कि ठीक है ऑटोमेटिक ब्रेक्स वगैरह के ऊपर 3 स्टेटमेंट आएगा, अगली बार आएगा फास्टैग पे। हर किसी की गाड़ी में फास्टैग है आज की डेट में। उस टाइम पे हमें ये नहीं पता होगा इसकी रेंज कितनी है। समझते हो ना मेरी बात? डे टू डे यूज़ वाली चीज़ें भी यहाँ पे ये आजकल पूछ लेते हैं, और हमें इन्हीं चीज़ों पे एफर्ट डालना है कि हमें एप्लीकेशन पता हो, हमें एटलीस्ट उसका बेसिक्स पता हो। दैट इज़ व्हाट इज़ गोइंग टू बी रिक्वायर्ड। जब टर्म्स पूछी जाती है तब तो बस इतना ही पता हो ये किससे रिलेटेड है, तब भी काफ़ी है, बिकॉज 4 में से एक आंसर निकल जाएगा। यहाँ पे स्टेटमेंट्स आती हैं, जैसे मान लो वैक्सीन डेवलपमेंट है, तो वैक्सीन डेवलपमेंट देयर मल्टीपल वेज ऑफ मेकिंग वैक्सीन्स, है ना। इंडिया में भी जो जो वैक्सीन बनी थी अलग अलग तरीके से बनाई थी उन लोगों ने, तो उसके ऊपर उन्होंने क्वेश्चन पूछ लिया। तो आपको और मुझे इन सब चीज़ों में थोड़ा सा स्किल होना पड़ेगा। दैट्स वाई करंट अफेयर्स ऑफ 1 ईयर इज नेवर सफिशिएंट फॉर साइंस। इस सब्जेक्ट में सबसे बकवास फिलोसफी है ये, 1 साल का पढ़ के चले जाओ, कभी पास नहीं हो सकते, क्योंकि उसका उससे कोई लेना देना नहीं है। यूपीएससी क्या कहता है, मुझे इनके आसपास के पिछले 3-4 साल की जनरल डेवलपमेंट्स में उससे क्वेश्चन पूछना है। और एक और अच्छी चीज़ आपको समझा दूँ, जो एक बार टेक्नोलॉजी अगली बार आती नहीं है, जो एक बार आगे अगली बार मोस्टली नहीं आती है, यहाँ से क्वेश्चन रेपिटेशन बहुत कम है। दैट्स वाई आई टोल्ड यू एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, सॉल्विंग PYQs विल ओनली गिव यू ओनली वन इंपॉर्टेंट क्वालिटी, दैट इज कैसा क्वेश्चन बन सकता है टेक्नोलॉजी पे, रेदर देन आपको उससे डायरेक्ट फायदा हो जाए। ये बुद्धिज्म जैनिज्म नहीं है, ठीक है, कि बुद्धिज्म जैनिज्म का रट लेंगे अगली बार भी सेम ही क्वेश्चन आएगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे डायरेक्ट नई नई टेक्नोलॉजी, और हर साल कुछ ना कुछ नई टेक्नोलॉजीज आने लगी। तो दैट इज एग्जैक्टली व्हाट वी नीड टू डू। अभी एक बार जल्दी से ट्रेंड देखते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। एमर्जिंग ट्रेंड देखो, पहले देखेंगे प्रोमिनेंट थिंग, और सेकंड विल सी अबाउट द नेचर ऑफ क्वेश्चंस ओवरऑल। सो देखो, क्वेश्चंस ऑन बायोटेक्नोलॉजी, इफ वी सी क्वेश्चंस आर कमिंग ऑन माइक्रो सैटेलाइट DNA, बायोफिल्टर्स एक्सेट्रा। अब ये सब ऐसे एरियाज हैं, अगर आपको इनके बेसिक्स नहीं पता है तो आप इनको नहीं कर पाओगे वेरी मच। चारों ऑप्शन एक जैसे लगेंगे, और 4 में से एक ऑप्शन हमेशा ऐसा दिया जाता है जो कॉमन सेंस को अपील करे, और लगेगा हाँ ये तो सही लग रहा है। और जैसे आप कॉमन सेंस पे गए, हर बार सही नहीं होता यार कॉमन सेंस, उसका भी तो रेशो होगा कुछ। अगर हमारी कॉमन सेंस हर बार ठीक हो तो पढ़ाई लिखाई छोड़ ना दें हम, कॉमन सेंस नहीं चलती हर चीज़ में। तो ये ऐसे एरियाज हैं बायोटेक में। काइंडली सी स्पेस एंड डिफेंस,
तो यहाँ से भी काफ़ी एरियाज हैं। नेविगेशन सिस्टम कम से कम 3 से 4 बार क्वेश्चन आ चुका है, कई बार प्रीलिम्स में, कई बार मेंस में। IRNSS जब से बना है, उन्होंने एक बार बनाया, यूपीएससी ने बार बार, और यही 2-4 क्वेश्चन आते हैं इसमें से। कौन सी कंट्रीज के पास नेविगेशन सिस्टम है? इंडिया चाइना तो आसपास में ही है, हाँ, जापान के पास है, यूरोप के पास है, यूएसए के पास है। यूएसए का तो सबको ही पता है, हम सब उसी पे जिंदा है। हमारा IRNSS में भी स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट है। पहले दे सेड इट विल बी ओपन फॉर द डिफेंस, फिर सिविल के लिए करेंगे, फिर ये करेंगे, फिर वो करेंगे। इनफैक्ट इन दी एंड ये जीपीएस से और अच्छा बन जाएगा, क्योंकि जीपीएस में जो बिल्कुल लास्ट रेंज होती है उससे और अंदर जाना है IRNSS में। अगर मान लो उसमें 20 मीटर का तो ये 5 मीटर तक जाएगा। तो ये चीज़ें एग्जैक्टली अगर नहीं पता होंगी ना, तो ये इस एग्जाम में जाके किल होने वाला काम है। और इन क्वेश्चंस में स्पेस में और डिफेंस में पता नहीं मतलब इनको क्या हो गया, ये ना गवर्नमेंट की तरह बात करता है यूपीएससी कि हम चौथे प्लेयर हैं, हम सिर्फ 4 हैं, हम सिर्फ 2 हैं, हम सिर्फ 3 हैं। यू आर द फर्स्ट वन टू टेक इट टू द मून साउथ पोल इन फर्स्ट ट्राई, फर्स्ट वन टू टेक इट टू द मार्स इन फर्स्ट ट्राई। ये नहीं बोलेंगे हम वैसे 5वें हैं, फर्स्ट वन इन फर्स्ट ट्राई। ऐसे ऐसे मतलब जो गवर्नमेंट का नहीं होता स्कीम्स वाला एजेंडा होता है, वैसी चीजें आपके स्पेस टेक में दिखेंगे आपको कि किन में से कौन सी 4 कंट्रीज है इनके पास ये कैपेबिलिटी है। तो ये भी मतलब रट्टाफिकेशन करना पड़ेगा कि हाँ किसके पास है क्या नहीं। तो मैं जब पढ़ाई करता था मुझे बड़ी हंसी आती थी चाइना के नेविगेशन सिस्टम पे, उसका नाम बीडू है। BIDU, पता नहीं वो है क्या, हमें बीडू याद कर लेते हैं। कैसे याद कर लेते हैं इसको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो दीज आर द थिंग्स विच यू नीड टू रिमेंबर। और ये देखो करंट अफेयर्स में नहीं होता है। अब कोई तुम्हें थोड़ा बताएगा कि चाइना में बीडू चल रहा है? तुम नेविगेशन सिस्टम्स के बारे में पढ़ोगे, उन कंपेयर करोगे, क्वालिटीज पकड़ोगे, तब तो समझ में आएगा कि ठीक है आज की डेट में कैपेबिलिटी क्या है। और इस नेविगेशन सिस्टम के लिए ऊपर अर्थ के आसपास कौन सी सैटेलाइट्स होती है, कि जियो स्टेशनरी हैं, पोलर हैं, कौन सी स्पेसिफिक हैं, तो वो आपको पता होनी चाहिए। अब मैं आंसर नहीं पूछ रहा हूँ इस टाइम पे, है ना, बाद में अपने आप से खुद से सोचो कितने मिनिमम सैटेलाइट्स में काम चल जाता है एक नेविगेशन सिस्टम बनाने के लिए। अब ये तुम्हारा सीसेट वाला भी हो गया, मिनिमम नंबर ऑफ लाइंस फॉर क्रिएशन ऑफ स्क्वायर ट्रायंगल, है ना, वही नेविगेशन सिस्टम वाली सिचुएशन यहाँ पे आती है। तो वी हैव टू बी अ लिटिल बिट टेक्निकल, वी कांट बी जस्ट कि सिर्फ रट्टाफिकेशन काम करके चल जाएगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ ना कि अगर इस वाले एक टॉपिक पे कोई यूट्यूब का अच्छा वीडियो हो तो देखने का सेंस बनता है कि नहीं बनता है, एटलीस्ट इमेजिनेशन आ जाएगी कि हाँ नेविगेशन सिस्टम किस तरीके से काम करते हैं। और आज के डेट में बहुत अच्छे अच्छे हैं, एक दूसरे से एक चैनल मैं देखता था अपने टाइम पे, कोल्ड फ्यूजन करके है, तो बहुत अच्छे से टेक्नोलॉजीज को समझाता है। ये इंस्टीट्यूट वाले वीडियो मत करना, बिकॉज मोर और लेस आसपास ही हैं टीचर्स, और उस लेवल के ग्राफिक्स डेवलप करना वो इंस्टीट्यूट्स के बस की बात नहीं है ना। वो मूवी जैसे लगते हैं पूरे। आज की डेट में कुछ कुछ यूट्यूब चैनल्स तो इनफैक्ट मूवी से भी अच्छा काम कर रहे हैं अगर उनको देखोगे तो वो कुछ स्पेसिफिक 1-2 चैनल्स ढूंढ लो इसके लिए जो इमेजिनेशन कराने में हेल्प करे। क्यों रात को बैठ के नेविगेशन को देख के गाली दे रहे हो, इससे अच्छा ना देख लो ना नेविगेशन सिस्टम कैसे काम करता है। नेक्स्ट टाइम अराउंड यू विल नॉट फेस प्रॉब्लम इन दिस। तो टेक्निकली हमें पता होनी चाहिए। और ये बहुत सारी चीज़ें देखो जो एक साथ आती हैं, ऐसा नहीं कि एक चीज़ है। फिर वो पूछें कौन से बैंड पे फ्रीक्वेंसी जाती है, वो फिर बैंड नहीं पता हमें, हमारा बैंड बज जाता है। हमें इफेक्टिव बनना है एग्ज़ाम के हिसाब से, इसलिए मैंने आपको सबसे क्लियरली बता दिया। इसमें अगर आप 1 साल के करंट अफेयर के बेसिस पे गए देन यू आर फिनिश्ड। बहुत सारी टेक्नोलॉजीज हैं जो राउंड द ईयर्स डेवलप हुई हैं, अब यूपीएससी उसको लेके आना शुरू हो गया। तो हमें बहुत तरीके से काम करना है और थोड़ा मेटिकुलस होकर पढ़ाई करनी है। इट कांट बी जस्ट दैट कि हवा में ऊपर ऊपर से करके चले गए। ऊपर से टर्म्स वाले क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, लेकिन अगर 2 तरीके की वैक्सीन कंपेयर करने आएगी तो वो कर पाओगे क्या? नहीं कर पाओगे। लेकिन बहुत दिक्कत आती है। 2020 के आसपास का मुझे याद है, कुछ स्टूडेंट्स थे, सर साइंस तो अच्छा प्रिपेयर्ड है, यूपीएससी ने जनरल साइंस डाल दिया सारा। अब वो लगे वहाँ पे सेल वॉल में क्या होता है, कौन सा मटेरियल से बनता है ये, एनिमल तो मैं भी हूँ, एनिमल सेल में क्या होता है नहीं पता मुझे। दिस इज द एग्जैक्ट प्रॉब्लम इन द साइंस एंड टेक पेपर। सम ऑफ यू विल बी फ्रॉम नॉट साइंटिफिक बैकग्राउंड, तो वहाँ पे थोड़ी ज़्यादा दिक्कत आती है इमेजिन करने में। तो रटो, वहाँ पे रटो, और कोई ऑप्शन नहीं है। और अगर कोई हेल्प कर सकता है तो वो वीडियोस ही कर पाएंगे, बिकॉज
नेचुरली ये चीज़ें सिर्फ एक टीचर के बेसिस पे नहीं हो सकती। तो मेरी तरफ से आप लोगों को सबको एडवाइस है, इट यूज टू वर्क फॉर मी। यहाँ पे हम अगर अच्छे से अवेयर रह जाएं 70 to 80% एक्यूरेसी आराम से आ जाएगी। अगर 10 क्वेश्चन है, अगर हम 8 भी अटैम्प्ट करें 100% भी एक्यूरेसी आ सकती है, बिकॉज यहाँ पे उतना दिक्कत नहीं आता। लिमिटेशंस पता होनी चाहिए हर किसी की, दैट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। एक जो एरिया है जो इसमें अभी हमने नहीं डाला है, उसमें काफ़ी टाइम से क्वेश्चन आ नहीं रहा है, दैट इज़ न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी पे भी काफ़ी आर्टिकल्स आते थे पहले, मतलब क्वेश्चन आते थे, रेगुलरली आते थे, बट अब वो उसने बंद कर दिया बिकॉज कितना ही पूछ लेगा। बट सिंस लास्ट ईयर वो फिर से न्यूज़ में आ गया है ना, ओपनहाइमर मूवी वगैरह भी आ गई है, तो आ सकता है वहाँ से कोई क्वेश्चन फिर से न्यूक्लियर एनर्जी पे। ये तो 2-3 बार आया था न्यूक्लियर एनर्जी, उधर नॉर्थ कोरिया अपना कुछ शुरू करता है, इधर से यूपीएससी क्वेश्चन बना के दे देता है और वो फिर हंसना भी गुनाह है वहाँ, हमारे ऊपर हंसो एनीवे ट्रेंड्स आप समझ लीजिए। कुछ क्वेश्चंस आपके डायरेक्टली कहाँ से आएंगे, करंट अफेयर से आएंगे। सेकंड, टर्मिनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन। और टर्मिनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन में पता नहीं मॉस्किटो से बहुत प्यार है यूपीएससी को, घूम फिर के वो यही पूछेगा कौन सा मॉस्किटो रेपेलेंट है, कौन सा मॉस्किटो के साथ ये करता है, डांस करता है, कौन सा क्या करता है, कौन सा क्या करता है। तो टर्मिनोलॉजी स्पेसिफिक क्वेश्चंस है ना, हियर दे विल आल्सो आस्क अबाउट दोज थिंग्स व्हिच अफेक्ट यू एंड मी डायरेक्टली, like which of the following chemical is being used as a preservative in the food industry, which of the following is being used in the plastic industry। तो ऐसे ऐसे करके कुछ टर्म्स के ऊपर भी जाता है ये। तो जो आपकी क्लासेस होंगे ना यहाँ पे विल मेक श्योर कि वो बिल्कुल अलाइन हो इस पर्सपेक्टिव के साथ में, कि आपको पूरा चार्ट बना के हम दे दें, ठीक है। तो ऐसे जो उल्टी पुल्टी चीज़ें हैं ना वो हम करा देंगे सारी, बट जो बहुत बेसिक लेवल की चीज़ें हैं, टेक्नोलॉजी समझना है, तो मैं चाहता हूँ थोड़ा सा यूट्यूब वीडियोस देख लो, बैठ के इधर उधर की मोटिवेशन देखने से अच्छा तो ये देख लो, ये रियल मोटिवेशन है जो एग्जाम में कम है कि है ना, होता है भाई। मैं अपने टाइम में 2-4 मोटिवेशन के वीडियो देख लिए, लत लग गई, तब छोड़ के मोटिवेशन देख रहे सुबह से लेके शाम तक। 3 दिन बाद कसम खाई आज के बाद कभी मोटिवेशन वीडियो नहीं देखूंगा। क्यों? बिकॉज यू स्टार्ट वेस्टिंग योर टाइम। वो आपको हर 5 मिनट में हो जाएगा ना, हाँ हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा वीडियो ही खत्म हो रहा है बस। तो आप लोगों को मोटिवेशन वीडियो से अच्छा है ऐसे वीडियो से प्यार करो जो लिटरली एग्जाम में हेल्प करेंगे, और वो आपको सिर्फ टेक्नोलॉजी लेवल पे देखना है, ताकि जब क्लास भी होना, अगर मान लो कोई टीचर आपको समझा रहा है तो आपको ना ईजी हो आपके लिए वो समझना, बिकॉज सारी टेक्नोलॉजीज को इतनी जल्दी जल्दी समझाना क्लासेज में मुझे तो कई बार लगता है बहुत मुश्किल काम है। तो इसलिए हमें तो फाउंडेशन में उन्होंने ऊपर ऊपर से घुमा के छोड़ दिया था बाकी देखते रहना, इससे आगे हमें भी नहीं आता वो आगे यूपीएससी बताएगी। कंसेप्चुअल क्वेश्चंस लिटरली कुछ कुछ जगह, चाहे वो करंट अफेयर से हों, चाहे वो आपके बेसिक एनसीईआरटी से हो, कंसेप्चुअल क्वेश्चन कई बार आ जाते हैं। कंसेप्चुअल क्वेश्चन जैसे कि मान लो कि मदर फादर का ये ब्लड ग्रुप है तो बेबी का कौन सा पॉसिबल है, इट इज अ कंसेप्चुअल क्वेश्चन ना, है ना। अब ये बहुत बेसिक लेवल क्वेश्चन है। ट्रांसफ्यूजन वगैरह के ऊपर क्वेश्चन आ जाते हैं, कभी कभी आता था कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज स्प्रेड इन ए स्पेसिफिक मैनर, तो आपको पता होना चाहिए हाँ कौन सा कॉन्टेक्ट से आता है, कौन सा किस चीज़ से स्प्रेड करता है। तो ये सारे कैसे क्वेश्चन होते हैं, कंसेप्चुअल क्वेश्चन, जिनके लिए आपको बिफोर हैंड ऐसे अलग से प्रिपेयर नहीं करेंगे, लेकिन आपको पता होना चाहिए हाँ क्या चीज़ है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज रिलेटेड टू वायरस, विच इज रिलेटेड टू बैक्टीरिया, विच इज रिलेटेड टू वर्म, विच इज रिलेटेड टू पैरासाइट, सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। ये सारी कंसेप्चुअल चीज़ें हैं जो बेसिक साइंस में बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्लॉकचेन मान लो, अगर टेक्नोलॉजी की बात करें तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्लॉकचेन, तो वो एक पहले कंसेप्ट आएगा, फिर उसके ऊपर सेकंड लेवल पे क्वेश्चन जो होता है दैट विल बी द एप्लीकेशन पार्ट। तो मेक श्योर आपकी जो साइंस एंड टेक की स्ट्रेटजी हो वो इन सब चीज़ों को ध्यान लेके जाए। और जो फैक्चुअल तो मैंने आपको बता ही दिया, कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि वो स्टेटमेंट बिल्कुल बस याद होनी चाहिए कि IRNSS 5 मीटर, अब ये, और या फिर आपका GPS जो है वो 20 मीटर तक का उसका है, तो ये क्या हो गया, पूरा बिल्कुल फैक्चुअल स्टेटमेंट हो गया। इट्स इम्पॉसिबल, उसमें ऊपर कुछ काम ही नहीं खाएगा। पता है तो पता है, नहीं पता है तो नहीं पता है, सिचुएशन खत्म, उतना ही रहने वाला है। तो हमें इन सब का मिक्स करना है, और सारे क्वेश्चंस अगर हम अभी देखना शुरू करेंगे तो बहुत सारे तरीके के क्वेश्चन है। जैसे देखो 23 के क्वेश्चंस हमने यहाँ पे बस साइंस एंड टेक के देखे। माइक्रो सैटेलाइट DNA, ठीक है, घूम फिर के वही आपका स्पीसीज ऑफ फोना, स्टेम सेल एक साल लेके आ गया, क्लोनल प्रोपगेशन आ गया। तो ये सारे उन्होंने टर्म्स लिख दी लाइन से, जिसमें जो गलती कर सकते हो कर लो, जहां तक कर सकते हो कर लो। हाँ ये तो शायद पढ़ा हुआ लग रहा है, ये तो शायद इससे रिलेटेड होता था, ऐसे था, ऐसे नहीं काम करेगा। हमें अपने आप को बिल्कुल अवेयर करना पड़ेगा। एरियल मेटाजेनोमिक्स,
जीनोम सीक्वेंसिंग में बहुत क्वेश्चन आते हैं, बहुत बहुत क्वेश्चन आए हैं इसके ऊपर। मतलब मुझे अभी भी याद है 2014-15 में भी ट्रांसलेशन एक टर्म पूछा था इन्होंने, है ना, किस तरीके से प्रोटीन सिंथेसिस होती है बॉडी के अंदर, ये सारी चीज़ें इन्होंने यहाँ पे पूछी हुई हैं टाइम एंड अगेन। तो हम लोगों को इसमें थोड़ा सा स्किल बनना पड़ेगा। और ये ऐसा सब्जेक्ट नहीं है, ये ऐसा करंट अफेयर नहीं है कि तुम जल्दी से एक बार पढ़ के 5 दिन में एकदम से हीरो बन जाओ इसमें, ये वो सब्जेक्ट ही नहीं है। इनफैक्ट अगर नेचर ऑफ सब्जेक्ट समझो जो सबसे आसान है, जो पढ़ के एकदम से टेस्ट दे सकते हो, वो है पॉलिटी। इकोनॉमी अगर समझ में आता है पढ़ के एकदम से दे सकते हो। हिस्ट्री अगर इंटरेस्ट रह पाता तो पढ़ के दे सकते हो। ये सब्जेक्ट तो लिटरली आउट ऑफ द बॉक्स वाली सिचुएशन है कि अगर टेक्नोलॉजी हमें ठीक से समझ। अब देखो बायोफिल्टर है, आया ना इसके ऊपर क्वेश्चन, इट प्रोवाइड वेस्ट ट्रीटमेंट बाय रिमूविंग अनईटन फिश फीड। अब ये एप्लीकेशन है, कंसेप्ट है, वो सब चीज़ें अगर हमें नहीं पता, इट कन्वर्ट अमोनिया प्रेजेंट इनटू नाइट्रेट। अब देखो पूरी केमिकल रिएक्शन पूछ ली इसने, केमिकल रिएक्शन पूछ लिया इसने। ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा अपने को कंसेप्ट पता होना चाहिए कि हाँ एग्जैक्टली होता क्या है, व्हाट इज दिस, है ना। ये चीज़ें हमें, अब फॉस्फोरस वगैरह है, फॉस्फोरस की साइकिल पता होनी चाहिए। फॉस्फोरस स्टोन में मिलता है, स्टोन की साइकिल मिलती है उसकी, ठीक है, या गैसियस साइकिल होती है। एनसीईआरटीज में ये भी चीज़ें कई बार ना ऐसे ही एलिमिनेशन होता है। इज दैट क्लियर कि हाँ कोई चीज़ वाटर से कनेक्ट करके उससे लिख दिया, लेकिन आपको पता है कि उसकी साइकिल तो स्टोन की होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज गैसियस साइकिल, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज दिस। ये एनवायरमेंट साइंस वाला पार्ट एक क्लब हो जाता है साथ में, है ना। सब्जेक्ट भी हुआ करता था एनवायरमेंटल साइंस, वही वाले पार्ट है ये। देखो ये सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम तो बार बार पूछेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इजराइल एंड जापान। तो अब तो सबको पता चल गया, अब तो आगे क्वेश्चन, अब तो कहानी खत्म हो गई। वो पेपर में पता होना चाहिए था उस टाइम पे हम। मिसाइल्स, इवन दो डिफेंस का आई वुड ऑलवेज से कि थोड़ा सा कम वेटेज है अपने पेपर में, डिफेंस का कम है। सैटेलाइट स्पेस सेक्टर का हमेशा ज़्यादा रहा है, डिफेंस का हमेशा कम रहा है। और डिफेंस में बहुत बेसिक लेवल चीज़ें पूछता है, बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल, बहुत बेसिक लेवल। अग्नि 1 2 3 4 5, कितना उनका रेंज है, कौन कौन न्यूक्लियर वॉरहेड को कैरी कर सकता है, नहीं कर सकता है। आपसे कोई बटन थोड़े ना दबा रहे लड़ाई करने के लिए, सिर्फ इतना पूछा है। तो इसकी वो बता दो हमें 2-4 चीज़ें, है ना। मीडियम रेंज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, वाइल ब्रह्मोस इज सॉलिड फ्यूल्ड इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। देयर आर दिस 5 to 7 कीवर्ड्स मिसाइल सिस्टम के लिए। वो सीख लिया, बस बात खत्म, रेंज पता कर लिया। अग्नि पे पहली बार क्वेश्चन नहीं आया है, अगली पे 2014-15 में भी क्वेश्चन आया था एक बार। तो बस उस पर यह पूछा था इसकी रेंज कितनी है, क्या है क्या नहीं है, ऐसे 1-2 स्टेटमेंट आई थी, या क्रूज मिसाइल है या फिर बैलिस्टिक मिसाइल है, उस तरीके का क्वेश्चन पूछ लिया। दोनों का अपना अलग अलग फंक्शन होता है, एक रेंज में अच्छा होता है और एक थोड़ा सा बिलो द रडार रह सकता है। तो ये जिसको भी फंक्शंस पता होंगे ना डिफेंस के, दे कैन ईजिली सॉल्व इट। तो इसलिए रट्टाफिकेशन पे इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, ज़्यादा ध्यान किस चीज़ में देना है, पहले कंसेप्ट पे, क्योंकि रट्टाफिकेशन धीरे धीरे करके हो जाएगा एग्जाम के आसपास तक, एटलीस्ट रिकॉग्नाइजेबल लेवल हो जाएगा कि हाँ पता होगा कि अग्नि 5 की जो रेंज है वो 100 किलोमीटर नहीं हो सकती। इतना तो कम से कम पता चल जाएगा ना, ये 1000 किलोमीटर नहीं होगी। जो ऐसी कौन सी अग्नि 5 है जो 1000 किलोमीटर ही जा रही है बस। वहीं का डिफरेंशिएशन करना है तो साथ में करना है, 1 2 3 4 5, हाँ क्या क्या है, किस टाइप की टेक्नोलॉजी यूज है, व्हाट इज द रेंज, व्हाट आर द वॉरहेड दैट दे कैन कैरी। क्योंकि मिसाइल टाइम पास के लिए तो बना ही नहीं है, किसी एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए बनाई गई है। तो दैट्स वाई व्हेन वी स्टडी हमें इन चीज़ों के बारे में पूरी ठीक से नॉलेज डेवलप होनी चाहिए। ये देखिए अब आपका स्पेस, और ये इतना आसान क्वेश्चन था नहीं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेबुला, पल्सर, स्पेड। अब ये पूरा स्पेस, इनिशियल जो स्पेस है उसके क्वेश्चन बना दिया इन्होंने। आपका एनसीईआरटी में एक चैप्टर भी है ज्योग्राफी में जो सबसे इनिशियल है ना, हाँ ना, हाँ बिग बैंग थ्योरी, वहाँ पे इनमें से ये 2 वर्ड यूज़ किए हुए हैं, नेबुला और पल्सर्स वहाँ पे यूज़ है, लेकिन फर्स्ट वाला नहीं किया, वहाँ पे यूज़ नहीं है। ठीक है, तो ये कुछ कुछ एरिया, अब इसका कोई कुछ नहीं कर सकता। अगर ये न्यूज़ में आया होगा, किसी ने पढ़ लिया होगा तो बात अलग है, बट एटलीस्ट 2 तो पता होते। और 2 पता होने के बाद फिर वही 50-50 वाली कहानी है, वो तो वो अपनी एक अलग दुनिया बन चुकी है अब, तो उस पर तो हम बात ही नहीं करते। हो गया उससे तो। देन कंसिडर द फॉलोइंग फंक्शन ऑफ एक्सेलरोमीटर, क्या करता है ये। अभी पता नहीं, पिछली 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 बार मुझे वो लगता है ना, गाड़ी वाड़ी चलाने वाले कुछ हुआ है, किसी का इंश्योरेंस हुआ है ना,
इंश्योरेंस ओपन करवाया होगा किसी ने अपनी गाड़ी वाड़ी का, सब कुछ पता कर लिया उसने एक्सेलरोमीटर क्या है, ब्रेक क्या है, ये क्या है, वो क्या है, सब देख लिया उसने, सब पे क्वेश्चन बना दिया कि स्टेटमेंट्स आपकी एवरीडे डे टू डे लाइफ के ऊपर भी आती है। कार्बन फाइबर्स, कार्बन नैनो ट्यूब, इन पे बहुत बार क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, थीम एट मैक्स आप पता कर सकते हो, लेकिन एग्जैक्ट क्वेश्चन कभी नहीं आएंगे। वो साइंस एंड टेक में यार इनके पास इतनी ज़्यादा फ्रीडम है ना, हर बार इतनी टेक्नोलॉजी सामने बैठी रहती है, उनको पता क्यों PYQ तक कि हम भी मेहनत करें, हम खुद यही नया ही डालते हैं, तो नहीं डालते हो। ये देखो वोल्बाचिया मेथड, अब ये वही मॉस्किटो वाली कहानी है। 21 में मॉस्किटो पे क्वेश्चन आता है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑयल कैन बी यूज एज अ रेपेलेंट, उसी का अगला अगला ये मेथड पूछ लिया। So we have to be very very careful in our approach. There are certain subjects from where questions are going to come and it is your task to identify कि हाँ ये एरिया मुझे अच्छे से करना है। बेसिक साइंस का बस एक ही दिक्कत है, वो या तो बिल्कुल नहीं आता है, आता तो बम्बार्ड करते हुए आता है वो बिल्कुल, फिर वो सारे वायरस बैक्टीरिया एक साथ एंट्री लेते हैं। ठीक है, तो वो इस बार तो नहीं आया इन्होंने 23 में। थीम वाइज भी जैसे अगर हम पीछे का भी देखें, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया प्रोड्यूस्ड कोविड-9 वैक्सीन कोविशील्ड यूजिंग mRNA प्लेटफॉर्म। ठीक है, अब ये स्पेसिफिक उसने पूछ लिया कि कौन से किस टाइप का वैक्सीन है ये, है ना। देन स्पुतनिक 5 बहुत चर्चा में थी शुरुआत में, एफिशिएंसी इज मोर देन 90%, दिस एंड दैट एक्सेट्रा, यूजिंग वेक्टर बेस्ड प्लेटफॉर्म, कोवैक्सीन इज एन एक्टिवेट पैथोजन बेस्ड वैक्सीन। अब पूरा ये इसने 2020 में नहीं पूछा जब कोविड चल रहा था, इसने वेट किया कि 1-2 साल हो जाने दो 1-2 साल हो जाने दो, वेव जाने दो, लोग भूल जाएंगे तब पूछेंगे। हाँ तो मतलब देखो ना 2022 में आया ये क्वेश्चन, वेव 20 में आई, 21 में आई, 22 में तो कुछ आया ही नहीं, तब ये क्वेश्चन बना। उन्होंने भी देखा ना मैगजीन से जा चुका है ये टॉपिक, नाउ इज द टाइम टू आस्क दिस। दैट्स वाई 1-2 साल की अप्रोच कभी काम नहीं करेगी साइंस एंड टेक में, रिडंडेंट है वो। आप न्यूज़पेपर पे भी जाके चेक करोगे 2 साल पहले का आएगा, फिर आप सोचोगे 2 साल पहले पढ़ लेता, कितने साल पहले पढ़ लेते, कब तक की जाना चाहते हो पीछे। कोई इशू नहीं है, हम फोकस करेंगे उन एरियाज पे जो न्यूज़ में रहे पिछले 2-3 साल में, प्लस साथ में सब्जेक्ट स्पेसिफिक अप्रोच के साथ चलेंगे कि बायोटेक के ऊपर कम से कम 1 से 2 क्लास होनी चाहिए, ताकि आप लोग समझ लो, बेसिक समझ लो, और जो एरियाज बायोटेक के मोर इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू फॉर द होल सोसाइटी, वो हमें पता होना चाहिए। मेडिसिन में क्या उसका यूज़ है, ये थीमेटिक है। बायोफिल्म्स पे क्वेश्चन पूछा इन्होंने, देखो वही 3 स्टेटमेंट, कैन फॉर्म ऑन मेडिकल इम्प्लांट, कैन फूड एंड प्रोसेसिंग, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, हर चीज़ मतलब पूरा एप्लीकेशन बेस इन्होंने पूछ लिया है, क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। ठीक है, DNA बार कोडिंग छोड़ा नहीं है इन्होंने पूरा, मतलब अच्छे से रिकॉम्बिनेशन वेक्टर वैक्सीन्स करो। ये 21 में पूछा था ये वाला, हेरिडिटरी डिजीज के ऊपर। अब ये आपको पता नहीं, ये सारा बेसिक लेवल क्वेश्चन है, कंसेप्ट पता होंगे तो पता होगा, क्योंकि बहुत न्यूज़ में थी एक स्पेसिफिक थेरेपी है ना जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया चेंज करते हैं। ठीक है, तो वो स्पेसिफिक जो आपकी वो है टेक्निक है, उसके ऊपर उन्होंने क्वेश्चन पूछ लिया। एंड इसको 3 पेरेंट बेबी भी बोलते हैं, आपको पता होगा ऑलरेडी इसके बारे में ना। तो इसके ऊपर उन्होंने क्वेश्चन पूछ लिया कि हाँ किस तरीके से होता है, क्या होता है। सो लॉट्स ऑफ न्यू थिंग्स आर कमिंग अप। जैसे हर साल आपको पता है कि जैसे आपको प्राइजेस वगैरह डिक्लेयर होते हैं, ठीक है ना, तो उस टाइम पे कुछ नई चीज़ के बारे में, जैसे कोई बात, जैसे ब्लू लाइट के ऊपर एक स्पेसिफिक रिसर्च हुई थी कि कैसे ये अफेक्ट करती है आपकी बॉडी क्लॉक को। ठीक है, तो इन सब लोगों को हाँ हाँ, ये सारी नई नई चीज़ें हैं और इनके ऊपर क्वेश्चन बनाना बहुत आसान है यूपीएससी के लिए। कई बार क्या होता है ना, मैगजीन्स में कोई चीज़ लिखी भी होती है तो सिर्फ एक शब्द लिख के आगे निकल जाते हैं, हम उसको समझते नहीं, अगली बार क्वेश्चन उस पर बन के आता है। ठीक है, अब यूपीएससी ने एक बार क्या किया, आई होप ऑल ऑफ यू नो कि हर 2-3 साल में कोई ना कोई तो एक नया डिजीज आता है जो स्प्रेड करता है। कोरोना से पहले भी बहुत बार हो चुके हैं। ठीक है, तो जैसे ही दो दो तीन एक टाइम के डिजीज आते हैं ना, वो कंपैरिजन में ले आता है, वो कंपेयर किया और बोल दिया बोथ ऑफ देम दे कैन स्प्रेड थ्रू सेक्सुअल ट्रांसमिशन। अब आपको पता होना चाहिए कि हाँ वो भी होता है और ये भी होता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको लिटरली तरीके से समझनी पड़ेंगी। सार्स सार्स करके एक डिजीज था, इट बिकेम वेरी प्रोमिनेंट इन अफ्रीका। अब अगर आज उसका और चाइना में जो रेस्पिरेटरी डिजीज चल रहा है उसका कंपैरिजन करके यूपीएससी ने अगर क्वेश्चन बना दिया
तो सार्स तो नहीं है न्यूज़ में, बट था वो भी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम। तो हमें थोड़ा सा, हम एक्चुअली पूरी टीम बैठ के इसके ऊपर पूरा रिसर्च कर रहे हैं कि कैसे कैसे किस तरीके से अप्रोच करना चाहिए। और वंस इट इज़ डन, आप लोगों को बहुत बढ़िया तरीके से हम इसको देंगे, बट फ्रॉम योर ओन साइड ऑल्सो यू हैव टू गियर अप। आ गया वो 31 की रात, वो न्यू ईयर रेजोल्यूशन बहुत दूर नहीं है, आ गया है उसके पास में। आपको एटलीस्ट पता तो होना चाहिए ना, आप अगर अपना थोड़ा भी टाइम इन्वेस्ट करते हो साइंस एंड टेक करने में, तो सही तरीके से करना चाहिए ना। गलत तरीके से करके क्या फ़ायदा। हम आँख बंद करके मैगजीन पढ़ लें, आँख बंद करके कोई बुक पढ़ लें, कोई नोट्स पढ़ दें, पढ़ते पढ़ते ही रह गए, सारी जवानी चली गई। भाई पास होना है, मज़े भी तो करने हैं लाइफ में, और किस लिए कर रहे हैं हमें पढ़ाई, इसके लिए, है ना। ऐसा होना चाहिए ना, घूमने फिरने के, कम से कम भारत दर्शन तो करा दो एक बार। इतने दिन हो गए मुझे ओआरएन में घूम रहा हूँ परेशान होके। अब ये भी बहुत ज़रूरी है, जो भी एप्स वगैरह आ रही हैं गवर्नमेंट की तरफ से, पूछ लिया उन्होंने क्या है ओपन सोर्स। अब सबको पता था कि ओपन सोर्स क्या होता है, बट एकदम से 4 ऐप आ गई सामने। ठीक है, ऐसे ये है क्वेश्चंस की कैटेगरी, और एकदम से वो बम्बार्ड करेगा कि हाँ आईसीटी में ये 4 चीज़ आई हैं, डाल दो। और हमें भी इसी तरीके से वेब 3.0, तो जब ये आते हैं तो एक साथ ही आते हैं, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, ये सारे पढ़ते थे हम एक टाइम पे ना, ये सास पास आस सब एक साथ एज ए सर्विस। आज की डेट में सब कुछ शुरू हो गया, ये सिर्फ सास पे नहीं रुका हुआ है, ठीक है, हर चीज़ है। मोबाइल का मैप एज ए सर्विस शुरू हो गया, मास, हर चीज़ में, फार्मिंग एज ए सर्विस, लिटरली हर चीज़ के आगे ये लगाना शुरू कर दिया सबने। तो आज की डेट में ये कंसेप्ट बहुत एक्सपेंड कर चुका है, बट इन जनरल आपको पता होना चाहिए व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सॉफ्टवेयर, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंफ्रास्ट्रक्चर, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एनी अदर थिंग विच इज अ पार्ट ऑफ सर्विसेज। तो पता होना चाहिए कि हाँ ईमेल कौन सा पार्ट है। इन्होंने पूछा आउटलुक हॉटमेल है, दे आर फॉर्म ऑफ सास। तो ये चीज़ें आपको थोड़ी सी सर्विस लेवल पे समझनी पड़ेंगी। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हाँ रोज ईमेल अपना चेक करते, ये भी नहीं पता हो कौन सा एज ए सर्विस में आता है। दिस इज बेसिक फेलियर ऑफ जनरल अवेयरनेस, और हमें इन चीज़ों को हिट करना है। ये एरिया बहुत, मतलब आई वुड ऑलवेज से कि इतना आसान नहीं है, बट मल्टीपल एरियाज है। फ्रैक्शनल ऑर्बिटल बम्बार्डमेंट सिस्टम, तो हमें इन चीज़ों के बारे में थोड़ा सा एक्स्ट्रा फोकस करना है। नैनो पार्टिकल, नैनो टेक्नोलॉजी से कभी कभार एक क्वेश्चन आ जाता है 3-4 साल में, जैसे न्यूक्लियर का है ऐसे ही नैनोटेक का भी है। नैनोटेक को भी आपको ठीक से पढ़ना पड़ेगा, बिकॉज नैनो पार्टिकल्स आज की डेट में बहुत ज़्यादा लेवल पे यूज़ होने लग गए हैं, और हमें पता होना चाहिए एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम्स ऑकर हो सकती हैं बिकॉज ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी, क्या पॉजिटिव्स हैं नैनो टेक्नोलॉजी के। तो ये पूरा जो एक साइंस एंड टेक का एरिया है, इसको हमें थोड़ा ठीक से समझना पड़ेगा। बी सेल, टी सेल, क्या रोल है ह्यूमन बॉडी में, ये पूरा प्योर आपका बायोटेक कंसेप्ट के ऊपर आ गए, और हमें इनमें अच्छा बनना है, हमें टाइम पास नहीं करना। सोलर स्टॉर्म, सोलर फ्लेयर, क्या क्या इफेक्ट होते हैं अर्थ पे, जीपीएस, सुनामी, पावर ग्रिड, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सब तो बहुत पुरानी इनकी थीम हुआ करती थी कि 8-10 स्टेटमेंट लिख दो, उन्हीं में परेशान हो जाएंगे, है ना। पहले तो बड़ा आसान हुआ करता था 1 2 3 4 5 6 7, फिर उन्होंने बीच में ना एक आधा ऑप्शन हटाना शुरू कर दिया कि वो लगे लॉजिकल, लेकिन वो होगा नहीं रियलिटी में। तो ये कुछ कुछ एरियाज हैं। देखो 10 में से देर कैन बी अ वेरी स्पेसिफिक रीज़न कि हो सकता है 2 टेक्नोलॉजी आप नहीं पकड़ पाओ फिर भी, बट 8 तो कर सकते हैं ना। और इसमें ऐसे आता होगा तो पूरा अच्छे से आता होगा, इसमें गैस वर्क बहुत ज़्यादा काम करेगा नहीं, क्योंकि जब टेक्नोलॉजी इमेजिन करनी नहीं आती तो करोगे कैसे, बताओ कैसे। ये पंचायत के इलेक्शन थोड़ा ना है वोटिंग की इतनी एज है, इसका ये है, उसका वो सब थोड़ा ना है यहाँ पे। शांति से देखो सीसीटीवी क्या आता है, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, वायरलेस, विच ऑफ द फॉलोइंग आर शॉर्ट रेंज डिवाइसेस। अब पता होनी चाहिए कि क्या शॉर्ट रेंज डिवाइस होता है, क्या उसकी स्पेसिफिक वेवलेंथ होती है, क्या चीज़ें होती हैं। अगर हमें नहीं पता है तो फिर हम परेशान होंगे इसमें। तो ये कुछ बेसिक लेवल की चीज़ें हैं जो, देखो मैं ये नहीं कहता कि फाउंडेशन कोर्सेज की गलती हुई होगी, फाउंडेशन कोर्सेज में यार पढ़ाने के लिए ना उनका वो एक लिमिटेड टाइम होता है, 20 घंटे है तुम्हारे पास, 20 घंटे में सारे सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन दे देना, ऊपर ऊपर से बता देना सब, उसके बाद जो होगा देखा जाएगा नेक्स्ट बैच। इट हैज हैपेंड लाइक दिस। आपको अब पास होना है, अब हमें ये नहीं करना, हमें विक्टिम वाली फीलिंग कभी नहीं रखनी अपने साथ में कि मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ वो हो गया, मेरा ये हो गया।
सबके साथ कुछ ना कुछ हुआ है। नाउ लुक फॉरवर्ड, सी द एरियाज विच वी हैव टू प्रिपेयर, फोकस ऑन दिस थिंग, ठीक है। अगर PYQ करना भी है तो सिर्फ 10 साल का करो, उससे पीछे मत जाओ, सिर्फ जनरल साइंस तक जाओ, उससे ज़्यादा पीछे मत जाओ। ये भी इसलिए जाना है, कुछ कुछ एरियाज में हेल्प मिल सकती है। जैसे नैनोटेक का क्वेश्चन अगर सेम टाइप का आता है, न्यूक्लियर एनर्जी में दो ही चीज़ें हैं, फिजन आएगा या फ्यूजन आएगा, उनके ऊपर कोई क्वेश्चन है तो एटलीस्ट पता होगा हाँ कहाँ है क्या नहीं। जैसे थर्मो न्यूक्लियर रिएक्टर जो बहुत फेमस है, जो फ्यूजन के लिए बन ही रहा है पता नहीं कब से, फ्रांस के आसपास, तो पता होना चाहिए कि हाँ कहाँ कौन सी कंट्री में है, किस प्रिंसिपल पे काम करेगा, एक्सेट्रा। प्रोबायोटिक्स, अब पूरी दुनिया प्रोबायोटिक्स कर रही है सुबह शाम, एड्स भी प्रोबायोटिक्स, सब पे लिख के आ रहा है प्रोबायोटिक्स, प्रोबायोटिक्स कोर्स, है ना, हर चीज़ पे लिख दो प्रोबायोटिक्स। उन्होंने क्वेश्चन पूछा उसके ऊपर। इनमें से कुछ क्वेश्चन आसान भी है, ऐसा नहीं कि बहुत सारे मुश्किल भी हैं, बट हमें पता नहीं चाहिए। अभी देखो थोड़ा सा वो केमिस्ट्री वाला पार्ट, वाटर कैन डिजॉल्व मोर सब्सटेंसेस देन एनी अदर लिक्विड बिकॉज अब ये प्योर बेसिक लेवल केमिस्ट्री है कि ऐसा क्या है, ठीक है। और हमें अगर ये नहीं पता है कि इट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट, ठीक है, इसका कोई लॉजिक नहीं हीट का और इसका, बट उस टाइम पे लगेगा कि हाँ ये है शायद। और जिसको बिल्कुल चारों एक बराबर लगते हैं वो फिर छोड़ेगा क्वेश्चन। सो हमें इन चीज़ों के ऊपर थोड़ी बेसिक लेवल पे, वाई एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंसेस आर विच ऑफ द फॉलोइंग इज रीजन वाई दे आर इन लाइट ईयर्स। और ये हर किसी को पता, लाइट ईयर्स अहेड। बैक्टीरिया, ये तो बहुत ही कॉमन है, विच कैन बी मेड इन द सिंथेटिक मीडियम। कभी कभार जैसे ऐसे क्वेश्चंस में वहाँ पे फंस जाओ ना, सबसे बेस्ट चीज़ छोड़ दो, ऐसे एक आधे क्वेश्चन में पीछे हटना भी सही रहता है, बिकॉज यू विल बी फील लाइक इन सबको तो मैं जानता हूँ, बचपन से परेशान किया इन्होंने मुझे। बैक्टीरिया, फंगाई एज वेल एज वायरस, ठीक है, कौन सा नहीं हो सकता सिंथेटिक मीडियम में। तो कुछ क्वेश्चन जब सॉल्व करोगे PYQ की, थोड़ा बस है कि ओपन अप हो जाएगा स्पेस कि ऐसा क्वेश्चन और आ सकता है। अब ये वाला क्वेश्चन, प्रेशर कुकर, ये इन्होंने CDS में एग्जैक्ट क्वेश्चन आया था, उसको एग्जैक्ट यहाँ डाल दिया। चलो चेक कर लेते हैं थोड़ा सा इन लोगों को भी, साइंस जैसे ऐसे कुछ कुछ क्वेश्चन तो वहाँ से दे देते हैं। ये देखो मॉस्किटो वाला, ठीक है, अभी लेमन ग्रास इज यूज फॉर दिस पर्पस। सोडियम लैंप, एलईडी के ऊपर कई बार क्वेश्चन आया है, इलेक्ट्रिकल सेक्टर से। एलईडीज अगर आप देखोगे कितना ज़्यादा चेंज हो गया ना पिछले 10 साल में, देखो टीवी सिस्टम कहाँ से कहाँ पहुँच गए, और हर रोज़ नई टेक्नोलॉजी आ ही रही है। हर बार नया टीवी ले जाओ तो इसका आगे एक और ओ लगा देते हैं वो, कि वो तो पुरानी टेक्नोलॉजी हो गई आपकी, ये तो OLED है। इस बार अगला एलईडी है, इस बार ये एलईडी है। तो यार तुम्हारा कुछ अलग दिखाओगे क्या? मूवी तो वो सेम ही रहेगी, मूवी थोड़ी ना चेंज हो जाएगी। तो हर बार कुछ ना कुछ अलग अलग चीज़ें चल रही हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक्स में से भी कुछ कुछ एक आधा एरिया है जो इम्पोर्टेंट मुझे लगता है, और आपको वो करना पड़ेगा। क्यूबिट, है ना, ये वैसा क्वेश्चन है जो लिटरली मैगजीन से सॉल्व हो सकता है, क्योंकि इसमें बार बार बताया होगा हाँ क्वांटम कंप्यूटिंग, क्यूबिट, है ना, इसमें भी दो चार टर्म्स होती हैं वो समझनी पड़ेंगी, बिकॉज बहुत चीज़ें ऐसी होती हैं आपकी मेरी इमेजिनेशन के बियॉन्ड है। अगर कोई आपसे बात करे क्वांटम कंप्यूटिंग, तो क्वांटम कंप्यूटिंग एक ऐसा एरिया है जहाँ पे दो डिजिट एक साथ रह सकते हैं, 0 भी और 1 भी। अब इसको इमेजिन कैसे करोगे? इसीलिए 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 ये जानना जरूरी है, क्योंकि इसके बेसिस पे अब अगला कंप्यूटिंग सिस्टम बन रहे हैं, है ना, बन रहे हैं ना। अभी आपके मेरे लिए यूज के लिए तो नहीं आए, वो एप्पल वाला ऐसे ही बेवकूफ़ बनाता रहता है। कि इस बार ये वाला चिप लगा दिया, इस बार नया वाला चिप लगा दिया, अभी तक ये सब अपने लेवल पे नहीं पहुंचा है। सुपर कंप्यूटर्स जो होते हैं वो बिल्कुल ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे द मोमेंट वी कम अप विद क्वांटम वाला कंसेप्ट एक बार चल गया, क्योंकि वो उससे बहुत ऊपर निकल जाएगा एक बारी में। एंड इवेंचुअली द स्केल विद विच द ह्यूमंस आर गोइंग फॉर एप्लीकेशन, तो पहुंचेंगे भी वहाँ पे। और इसमें भी थोड़ा ध्यान रखना है, क्वांटम कंप्यूटिंग, क्वांटम कम्युनिकेशन, दोनों में डिफरेंस होता है। चाइना इस कम्युनिकेशन पे बहुत काम कर रहा है। लाइक नॉर्मली क्या होता है कि जैसे राहुल गांधी जी आते हैं कि हमारा फ़ोन टैप कर लिया, पेगासस वायरस लेके आए हैं, ठीक है। क्वांटम कम्युनिकेशन में पॉसिबल ही नहीं है, द मोमेंट एनीबडी इज गोइंग टू ट्राई वो कम्युनिकेशन चैनल ही बंद हो जाता है। तो ये चीज़ें चलती रहती हैं अखबार में कि इसके अगेंस्ट क्या है, उसके अगेंस्ट क्या है, बट ये एज ए स्टूडेंट आप सब लोग उतना नहीं फॉलो कर पाते।
बिकॉज क्या क्या करें, क्योंकि आपकी तो हमेशा जाती है पेपर 2 और पेपर 3 वाले आर्टिकल्स पे, और क्या भूल जाते हैं हम, साइंस एंड टेक, ये भी है कुछ। और ये याद दिलाता है आपको पीटी वाले दिन, आई एग्जिस्ट, है ना, फंडामेंटल ड्यूटी थी, साइंटिफिक टाइम पर डेवलप नहीं किया, वहाँ भी फेल हो गए। बिस्फेनॉल ए, नाउ दीज आर द काइंड ऑफ क्वेश्चन आई वाज टॉकिंग अबाउट, कि कौन सा मैन्युफैक्चर विद द काइंड ऑफ प्लास्टिक्स। तो हल्का फुल्का केमिस्ट्री वाला एंगल एक आधा क्वेश्चन इन लोगों ने डाला है पिछले कुछ टाइम से। तो बेसिक केमिस्ट्री भी अगर एक बार पढ़ लोगे तो बुरा नहीं है, ठीक है, बेसिक लेवल पता होगा, मान लो एक दो क्वेश्चन ऐसे आ जाए, पता होना चाहिए। अब हाई लेवल, हमने बहुत सारी चीज़ें न्यूज़ में चली हैं पिछले अगर 5-10 साल में देखोगे, मोनोसोडियम ग्लूटामेट बहुत न्यूज़ में चला था बिकॉज ऑफ मैगी, है ना। तो वो एजेंट किस चीज़ के लिए यूज़ होता है, टेस्ट एनहांसर होते हैं, कितना भी बेकार टेस्ट हो उसको खाओगे तो मन हमेशा क्या करेगा, और खाते हैं। तो ऐसी कई चीज़ें हैं, ठीक है, और ये चीज़ें पूछते रहते हैं कि ये किस चीज़ में यूज़ है, फूड प्रिजर्वेटिव में है, फ्रूट राइपनिंग में है, रीयूज प्लास्टिक, या फिर टॉयलेटरीज में है। तो हमें थोड़ा सा अवेयर होना पड़ेगा, दिस इज प्योरली जनरल अवेयरनेस और कुछ भी नहीं है। ये वर्ड आते रहते हैं बार बार न्यूज़पेपर में, बट हम उन पर ध्यान नहीं देते। बोलगार्ड 1, बोलगार्ड 2 टेक्नोलॉजी, हमेशा हमें पता होना चाहिए कि हाँ, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप प्लांट्स कितनी बार मतलब न्यूज़ में आया है ये, है ना, बीटी ब्रिंजल, बीटी कॉटन, कितनी बार मतलब हमारे सामने ये चीज़ आई है। So these are the areas from where UPSC is asking question from ACE2, ठीक है। तो लार्जली अगर सिलेबस देखोगे, अगर पूरा सिलेबस देखोगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये बायोलॉजी, बायोटेक, सारा, तो बहुत वास्ट सिलेबस है। बट अगर हम देखें पिछले 10 साल का ट्रैक रिकॉर्ड, सो 8 आउट ऑफ 10 ये सिर्फ किस चीज़ में फोकस किया है, करंट अफेयर्स पे, इतना 100% है। ट्रिकी हैं क्वेश्चंस, दे आर नॉट वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, नॉट वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, आई कैन नॉट से कि भाई सारे के सारे कर लोगे, बट हाँ, इफ यू हैव कमांड ओवर टेक्नोलॉजी देन यू कैन इजिली सॉल्व इट, एंड दैट टू विद प्रिसीजन। फिर ये नहीं होगा मैं तो 50-50 करके आया था, 50-50 साइंस में नहीं चलेगा भाई। पहले 50-50 साइंस में बहुत ज़्यादा चलते थे, यही एरिया था जिसमें यूपीएससी में आगमन करके हम डी लगाते थे, जब समझना है एप्लीकेशन तो क्या लगाना है, डी, बहुत ही जनरल नॉलेज थी हमारी। बट अब यूपीएससी ने इसी को ही सबसे पहले पकड़ा कि डी आंसर बनाना ही नहीं है, कुछ भी हो जाए डी बनाना ही नहीं है, मतलब 10 या 11 क्वेश्चन होंगे, डी नहीं बनाएंगे, बन भी गया तो उसे गलती मानेंगे, मतलब एटलीस्ट 8 से 9 क्वेश्चन में तो डी आंसर नहीं होना चाहिए। सोशल मीडिया पे शुरू हो गया था ये 2020 में, पेपर आया, ठीक है, सारे उल्ट पुल्ट क्वेश्चन, आंसर क्या थे लेकिन डी 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 डी, लाइन से 3 साइंस के 3 डी। तो दैट बिकेम अ प्रॉब्लम, सो दैट्स व्हाई दे स्टार्टेड मेकिंग इट अ बिट मोर ट्रिकी, कि कॉमन सेंस को वो लगे आंसर लेकिन वो सही नहीं होता, ठीक है। बट हमें कुछ भी चीज़ वैसे सोच के जाना नहीं चाहिए। क्या मुझे ये लगता है कि अगर नेट इसमें हम 65% एक्यूरेसी, अगर 11 क्वेश्चन आ रहे हैं, 7 क्वेश्चन ठीक कर पा रहे हैं, दैट्स अ गुड इनफ, ठीक है। परसेंटेज वाइज देखो, कट ऑफ अगर जा रहा है 80 से 85 के बीच में, 60% बहुत अच्छी एक्यूरेसी है। और साइंस एंड टेक में करने को 70-75% भी जा सकते हो अगर आपका अवेयरनेस अच्छा है, एरियाज आपको सही से सारे कवर्ड हैं। कई बार तो क्या होगा, इफ़ यू आर नॉट अवेयर अबाउट द टेक्नोलॉजी तो काम खत्म, तो करोगे कैसे। बट इफ योर अवेयरनेस इज गोइंग टू इंक्रीज, योर एक्यूरेसी विल ऑल्सो इंक्रीज 100%, बिकॉज दिस इज एन एरिया जहाँ पे अगर कंसेप्ट समझ में आ गया तो आंसर निकालने में कोई दिक्कत ही नहीं। अब किसी को पता है हाँ बीटी ब्रिंजल क्या होता है, किसी को पता है बोलवार्ड क्या होता है, बट काम खत्म, 4 में से 1 आंसर। तो यहाँ जितनी अच्छी अवेयरनेस होगी उतना आराम से आपकी एक्यूरेसी भी बढ़ेगी। अटैम्प्ट में हल्का फुल्का एक क्वेश्चन छोड़ सकते हो, कि अगर 11 क्वेश्चन है तो हो सकता है आप 9 ही अटैम्प्ट करो या 10 ही अटैम्प्ट करो, एक आधा क्वेश्चन छोड़ सकते हो। बट वी हैव टू मेक श्योर यहाँ हमारी एक्यूरेसी कम से कम 65-70% होनी ही चाहिए। और ये एक रिलेटिवली ईजियर सब्जेक्ट टू टैकल है इन कंपैरिजन टू एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट में तो कुछ कुछ एरियाज ऐसे हैं आप चाहकर भी कुछ नहीं कर पाओगे, बट दिस इज वन एरिया लिटरली इफ यू डू वेल यू विल गेट वेरी गुड मार्क्स, ठीक है। दिस इज प्योरली लाइक दैट एरिया ऑफ पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक, ठीक से पढ़ाई करोगे मार्क्स आएंगे। बट अप्रोच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डोंट गो बाय दैट मैगजीन अप्रोच। मैगजीन अप्रोच तो सबसे बकवास अप्रोच है, आग मन करके पढ़ना शुरू कर दो, ये कुछ भी रैंडम। यहाँ हमें पहले बेसिक्स ठीक करने हैं, उसके बेसिस पे आगे
फिर उसकी एप्लीकेशन सीखनी है, एंड दैट टू इट शुड बी कैटेगरी वाइज, इट कैंट बी लेफ्ट टू ओनली 1 or 2 एरियाज. दिस इज व्हाट दिस इज अबाउट. ठीक है,